very good evening to all of you and a warm welcome to another episode of No Reservations. आज हमारी मेहमान कौन है? Well, let me tell you a bit about her. वो मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी हैं, यमी मम्मी for sure हैं, ट्रॉफी वाइफ, एंड शी डज सो मेनी थिंग्स. मतलब वो इतनी चीज़ों को किस तरह जगह करती हैं और किस तरह मैनेज करती हैं, ये सब चीज़ें हमें उनसे खुद सवाल करने पड़ेंगे. हम जानना चाहेंगे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, लेकिन ये सब होगा छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे विद अस, यू आर वाचिंग नो रिजर्वेशंस. बाय द वे, मैं हूँ आयशा आलम खान. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं नो रिजर्वेशंस और वक्त आया है कि हम अपने मेहमान से, आज सिर्फ एक मेहमान है, एंड वाई बिकॉज शी इज़ वेरी स्पेशल. इन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है, काफ़ी मेहनत की है, एंड शी हैज़ मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ एंड अ हाउस होल्ड नेम. एवरीवन नोज हर. यू कांट बी इन पाकिस्तान एंड नॉट नो हु नादिया हुसैन इज़. Good evening, Nadia. Thank you for joining us. It's a pleasure to have you on the show. Nadia, आपने modeling की है, आपने acting की है, आप hosting करती हैं. You're also a mother. You're a wife. Oh my God. Aisha, please. Yes, no, please. Okay. That's you as well. Okay. Yes, but I know how difficult it is. Yeah. मुझे पता है कि ये आसान काम नहीं है. हाँ. बहुत मुश्किल है. And मेरा तो फिर भी चलो ठीक है. मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं हो. You're traveling a lot. You got fashion shows. There's things happening. Yeah. आप इन सब चीज़ों को किस तरह समेटती हैं और किस तरह मैनेज करती हैं? I mean, I know कि मैं आधा वक्त में अपने बाल खींच रही होती हूँ. But how and Nadia always आप कहीं भी इसको मिलें, कहीं भी picture perfect. I mean, even अगर मेकअप ना भी पहना हो, ग्लासेस होंगी स्टाइल पे और बाल भी बिल्कुल सही तरह बनी होंगी, but you never look like a hair out of place. Well, that is something which I think it has to be inborn. Okay, clearly not inborn here. Okay, I am quite happy just brushing out. जो मतलब आगे जूते मिलके हाँ बस ये बस बाजार ही जा रहे हैं, क्या बड़ा मसला है? You actually really take the time out to No, I don't take the time out. It's just something like I said. That's an inbuilt thing. Okay. Okay, so basically what you're trying to say is आपको शुरू से बनने और संवरने का शौक था. नहीं, I wouldn't like I said कि it's not as though कि मुझे हर वक्त बनने संवरने का शौक था, but ये है कि for certain occasions, like I mentioned, ईद हो या फिर शादियों के ऊपर. Then I have to ask you this. Were you one of those girls? मतलब कुछ लड़कियाँ होती हैं ना जो आईने में अपने आप को देख के बोलती है, हाय मैं तो हूँ ये खूबसूरत, मैं तो बड़ी होके मैं तो मॉडल बनूंगी. No, were you one of those? Not at all. Not at all. Not at all. Like honestly, it's never been like that at all. Though, I mean, and nobody even used to tell me when I was young कि oh तुम बड़े हो के तुम model बड़ी बनो हसीन है या Matlab, how fathers are, for example. I mean, every father thinks that their daughter is beautiful. So I was always told by my father as well that, oh, you're beautiful, and that's it. That's all that I ever heard from my father. But from anybody else, it was not something, like, especially the, bachpane mein, maybe from like, I don't know, like I'm talking about the very, very young years where you can get conscious maybe from like 8 years to like 15 years. It was never that at all. Okay, but there's another thing जो मैंने आपके बारे में नोट किया है कि मुझे याद है जब हम थिएटर प्ले एक साथ कर रहे थे and I was directing you. And one thing that जो मुझे शायद मैं गलत हूँ, हो भी सकता है, and that's up to you to sort of disclaim it. वो ये था कि नादिया अपने बारे में बहुत कॉन्शियस है. मतलब बोलने में भी कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं किस से बोल रही हूँ, हर चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के करती हैं. That is true. ये शुरू से आदत थी या कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपने कहा कि oh I think I'm better? Because it was always drilled in our head, of course, especially my head, by family, by my mother, by khalas, by people around me, that you always have to be careful of what you say and where you say and how you say it and how you sit and how you stand. Political correctness. Political correctness to nahi, but just how it is that you should behave in a crowd. Considering कि आपके ऊपर इतना ये basically भारी किया गया था, बोझ दिया था. It is a बोझ, really, क्योंकि हर वक्त कॉन्शियस रहना कोई आसान काम नहीं होता. और फिर जब आप मॉडलिंग में आई,
और मीडिया के स्क्रूटनी के अंदर आप रहती हैं कॉन्स्टेंटली, एंड एक दफा मीडिया में आई उससे फिर आप भाग नहीं सकते। आप चाहे जितने भी साल गुजर जाए, आप जहाँ भी जाएं, लोग हमेशा आपको उस नजरिए से देखेंगे जो जब आप पहले आपने कदम रखा मीडिया में। Has that made you more conscious? उसकी वजह से शायद आपको और मुश्किल लगी है या? It has made me more conscious, definitely. Politically, you will never hear any wrong statement from me because I am anyway quite easygoing. Yes. और मेरी कभी भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं हुई है, एंड कभी भी जना कोई मुंह मारी नहीं हुई है. You know, a lot of people ask me, oh, any cat fight backstage or anything. I'm just like, you know, no. बल्कि आपके बारे में कहा जाता है कि नादिया हुसैन कभी भी किसी के साथ नहीं लड़ती. हाँ. लेकिन नादिया हुसैन को गुस्सा चढ़ता है. हाँ, चढ़ता तो नादिया हुसैन उसका क्या करती है जब आपको गुस्सा चढ़ता है और आप चाह रही हैं कि आप इस वक्त किसी को एक जोर का चांटा दें, लेकिन आप नहीं देती हैं, आप बस मुस्कुरा के कहती हैं ओके बाय, आई एम गोइंग होम नाउ. मतलब आप किस तरह हैंडल करती हैं? जब गुस्सा आता है और अगर कोई ऐसा कोई यू नो वजह हो जिस पे गुस्सा जब बहुत जायज है, तो डेफिनेटली आई विल स्पीक. इट्स नॉट एज दो कि आई विल लेट एनीथिंग, यू नो, लाइक आई विल लेट द वाटर लाइक पास ओवर माय हेड फॉर नो रीजन. You know, जब एक you're not a doormat. No, not at all. From nowhere. I mean, I am politically correct where it is necessary, and I will voice my anger, or I will you know, act in a certain way where it is required as well. Okay, catwalk, models, fashion. अब सही बताएं. And I know this happens, okay? क्योंकि मैं भी शुरू में थोड़ी सी दुनिया में मैंने शायद झलक एक देखी है. जो फड्डे होते हैं और फड्डे होते हैं, यू कांट डिनाई दैट. नादिया बहुत ही डिप्लोमेटिक स्माइल दे रही है. जो फड्डे होते हैं ज्यादातर किस चीज पे होते हैं? कपड़ों पे, या कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा? व्हाट इज द रियल इशू दैट हैपेंस बिहाइंड विद द मॉडल्स? या एक्चुअली इसी चीज पे ज्यादातर होते हैं फड्डे के, हु इज गोइंग टू ओपन एंड हु इज गोइंग टू क्लोज. बट वेरी फ्यू मॉडल्स आर एक्चुअली crazy about that. You know, I would say कि कराची की ज़्यादा कोई लड़की नहीं है ऐसी जो इस चीज़ पे लड़े कि जी मुझे ओपनिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है. बट आई वुड से कि लाहौर की कुछ लड़कियां हैं who are very driven by this कि जी we want to open and we want to close. और वो अभी तक ये बात अभी तक कायम है, क्योंकि ये बात आई रिमेंबर 10 साल पहले भी ये बात अभी तक कायम है. I was hoping कि अब तक शायद ये खत्म हो गई हो या नहीं खत्म होगा, because you see I guess this is the industry in which एक चीज़ जिसकी इम्पोर्टेंस है उसकी इम्पोर्टेंस है, और वो इम्पोर्टेंस मानी जाती है, which is basically कि जो ओपनिंग करता है is perhaps the more known name, and जो closing करता है that is also perhaps the most known name. So one you know, as a model you would always want to go one step further, right? So एक ये struggle तो होती है, एक struggle तो होती है. एंड सो कई दफ़ा लड़ाइयाँ भी होती हैं. कई मेरे से एक्चुअली कपड़े भी छीने गए हैं मेरे रैक पे से. ऑल ऑफ अ सडन आई केम बैक एंड आई हैड द क्लोजिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन माय साड़ी इज गॉन एंड आई एम जस्ट लाइक, where is my sari? And I was shouting and screaming at my changer. I was like, where is my sari? It was right here. And then I turn around and I see this other girl wearing it. And I was just like, which other girl? Forget it. Which other girl, Nadia? Which other girl? Well, she's a friend actually as well, and I even told her बड़े मीठे अल्फाज में. मैंने कहा अच्छा तुमने ले ली मेरी साड़ी. That was Marine Sayyed. Oh, all right, okay. Who by the way is very sweet. I've met her also. But okay, Marine आपने. But then she said कि नहीं अल्लाह की कसम ये साड़ी तो मेरे रैक पे रखी थी. मैंने कहा अच्छा Marine पहन लो, चली जाओ मेरी जान, जाओ. All right. मजीद कहानियां हम सुनेंगे नादिया से, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक, एंड देन वी विल बी बैक विद नो रिजर्वेशंस.